thesis or even just a project which basically models Iqbal's poetry. Okay, and I believe this can be done. That's why I'll just share it with you. So it's basically a natural language processing problem. So if you look at Iqbal's poetry, and it is also being translated into English. So there is like, I think with very little hassle, we can work on this thesis or project. So we have Iqbal's poetry translated into English, where we can do word embedding. Remember, word embedding is taking every word and maybe first finding out its histogram, that how many times the word is used in Iqbal poetry. And then embedding it, every word will be converted into a vector of 300 dimensions. Okay, every vector of 300 dimensions. So once you have a word converted into 300 dimensions, so you will have, so Iqbal, like the poetry itself is divided into 3 parts. Iqbal's poetry is divided into 3 parts. First part is till 1905. And I believe that, and this is my assumption based on a little I know about Iqbal's poetry, that once we try to fit in a model, it will have like 4 Gaussians. It will have 4 Gaussians in it. One is once Iqbal started his poetry, this is pre 1905. So he started like poetry for the nature. जिस तरह इकबाल का जो कलाम है, उसका जो पहला शेर है वो है, ए हमाला ए किश्वरे फसीले हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमान. ठीक है, so it is about Hamala. So the first poem is Hamala. Okay? And then you find out there are many poems which only relates to nature. Okay? जैसा उनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है कि दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकदीर भी फ़िदा हो, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ. ठीक है, और दुनिया का गम का दिल से खटका निकल गया, वो हाथ का सिरहाना सब्ज़े का हो बिछोना, मानूस इस कदर हो सूरज से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो. ठीक है, झुक झुक के छू रही हो पानी को गुल की टहनी, और जैसे हसीन कोई आईना देखता हो. ठीक है, सो ऑल इकबाल्स पोइट्री इज़ अबाउट नेचर, एंड स्टिल दो ही इज़ बिजार फ्रॉम पीपल, लेकिन वो स्टिल ही वांट्स टू हेल्प आउट. वो कहता है कि रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस्म, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो. लाइक स्टिल ही थिंक्स दैट इफ समबडी हैज लॉस्ट हिज वे, सो आई कैन. सो अ लॉट ऑफ nature in Iqbal's poetry. So you find out all these words, and which I think because of they resemble with each other. So once you do word to word, वो एक जगह नज़र आएंगे. So they'll be in one place, and which would make this Gaussian in the corpus that we have. The second thing you will find in Iqbal's poetry that's pre-1905 is the nationalism. ठीक है, it's natural, like he likes so much the Hamala, and you know the space, that he was truly a nationalist to start with. जिस तरह उनकी नज़म है कि अभी इंडिया ने उसको तराना, ऑलमोस्ट तराना बनाया हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा. ठीक है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा. ठीक है, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ हिंदुस्तान नेशनलिज्म also in Iqbal's poetry. So it's natural. The third thing you find in this piece of Iqbal poetry is the poems he has written for children. ठीक है, कि एक मक्खी ने कहा, एक मकड़े ने कहा एक मक्खी से, या यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, या टहनी पे शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा,
कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँगा किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। ठीक है, तो जुगनू को ही पास ही से बोला कि जी हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। तो इस तरह नहीं कोई चीज़ निकम्मी यहाँ ज़माने में, और समथिंग लाइक दैट। बट देन द मोस्ट फेमस ऑफ द चिल्ड्रन पोएम्स इज़ के यारब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सही है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये लॉट ऑफ यू विल फाइंड कि इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, विच इज़ फॉर चिल्ड्रन पोएम्स। And then also this part, the pre-1905 is a lot of traditional poetry Iqbal has done, जिसमें है कि ना आते तुम ही इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए यार क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, भरी बज़ में अपने आशिक को ताड़ा, खता इसमें बंदे की, तेरी नज़र मस्ती में होशियार क्या थी। ठीक है, सो मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। सो दिस इज़ लाइक pre-1905, so it'll be very interesting to find out that how the word to vect of the translated Iqbal's poetry in Urdu, in English, would present itself. Can we find out these distributions or not? Okay. फिर इकबाल की पोइट्री है जो 1905 से 1908 तक है, एंड दिस इज़ वेयर यू फाइंड इकबाल कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे ना आपको कन्फ्यूजन है, या ज़ाहिर अब ट्रांजिशन हो रही है ना, वो तो बहुत ट्रेडिशनल बच्चे, नेशनलिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हियर इट इज़ कन्फ्यूज्ड, सो यू डोंट सी अ डायरेक्शन, अ पिवट, सो you don't see that he's pivoting on something. But then there is this poem, or actually a ghazal, whose title is 1907. ठीक है, and 1907 because he read it in 1907 in a big gathering in Lahore. इतनी बड़ी gathering थी, and people लोगों को they gave it in print form, and he became very famous इकबाल के, which starts with ज़माना आया है बेनकाबी का आम दीदारे यार होगा, सकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। कि वो कहता थे कि छुप के पीते थे पीने वाले, कि सारा जहां बनेगा मैं खाना। सो ही वाज लाइक ओपनिंग अप, ही वाज काइंड ऑफ, लगता है उसका फोकस वापस आ रहा है। और इस पार्ट का जो आखिरी शेर है ना, वहाँ से भी पता लगता है, ना पूछ इकबाल का ठिकाना अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे रह गुजार बैठा सितम कशे इंतज़ार होगा। सही है, सो ही इज़ लाइक वेटिंग फॉर सम, सिटिंग समवेयर, ही इज़ वेटिंग, सो यू विल नॉट, परहैप्स दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू सी इन देयर। एंड देन इज़ द मेन इकबाल की जो सही आपको पोइट्री नज़र आती है, वो इज़, इट सेज 1908 एंड बियॉन्ड। ओके, यहाँ पे, सो नाउ यू विल फाइंड आउट इकबाल converting from a nationalist to मिल्लत फोकस, कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मिल्लत का कफन है। ठीक है, सो ही डज नॉट वांट टू बी अ नेशनलिस्ट एनी मोर, अदर ही सेज के वो तो कफन है, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ नेशनलिस्ट वो कफन है। ठीक है, एंड यू जस्ट फाइंड अ न्यू इकबाल। ही री रोड दी तराना है, उसने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सो ही जस्ट चेंज, ओके, सो ही चेंज एंड ही वॉज नो मोर nationalist, he was a millat focused, and he himself said, इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। It's a new start. So this was a new start for Iqbal, and you will find out a lot about his concept of millat, where he would go beyond any boundaries, के नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर तक जो है ना, he says that this is who we are. And then you will also find out the initial part, he's probing himself a lot.
उससे बहुत ज़्यादा प्रोबिंग आपको नज़र आएगी इसमें। जिस तरह शिकवा है कि क्यों ज़याकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महवे ग़मे दोष रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूँ, जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझसे, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। एंड देन ही जस्ट कीप कंप्लेनिंग। उसमें कहता है कि जी तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। और फिर वो जो सो इट्स लाइक द इंटायर part is he's probing himself actually, but he is complaining to God. And so you'll find a lot of this probing happening here, and then finally he is finding the answer. So rest of his poetry is the answer which he got. इकबाल, ठीक है, मतलब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसे जवाब शिकवा में जो कहते हैं, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। सो लॉट ऑफ इकबाल पोइट्री इज हियर एंड दैट ब्यूटिफुली एंड्स एट इब्लीस की मजलिस शूरा पे। अच्छा, अब इकबाल, अब ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा कि पीपल थिंक दैट इकबाल की पोइट्री खुद ही की पोइट्री है, ठीक है। नहीं, इकबाल की पोइट्री जो कल्मिनेट होती है, आई डोंट नो हाउ वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दिस, लेकिन इकबाल की जो पोइट्री ख़त्म होती है ना, वे व्हाट ही कंक्लूडेड ऑफ दिस प्रोबिंग इज़ कि जो लीडरशिप है इस दुनिया की ना, वो सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। इफ़ यू वांट दिस टू बी अ पीसफुल वर्ल्ड, वो सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, इस्लाम कर सकता है, ठीक है। और वो कहता है कि कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचगर्द, ये परेशान रोज़गार आशुफ्ता रूह आशुफ्ता मग़ज़, ठीक है मुझे अगर कोई ख़तरा तो इस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू, खाल खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं वो, करते हैं अश्के सुबह गाई से जो जालिम वज़ू। ठीक है, वो कहता है बस ख़तरा मुझे इससे है, इफ़ यू कैन डू जस्ट हाइड दिस to the world, because this is something इसका जो बेसिक प्रीमाइज ही है कि टू चैलेंज, और जो कि दस्ते कुदरत ने किया है जिन गिरेबानों को चाक, ठीक है, तो नेचर ने किया है, वो एक बंदा तो नहीं उन्हें फिल कर सकता। दिस इज व्हाट हिज बेसिक प्रीमाइज। और वो कहता है अच्छा है कि ये उम्मत ना अलियात में उलझी रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझी रहे, जस्ट लेट देम फाइट विद ईच अदर ऑन दीज पिटी मैटर्स, बिकॉज ये कि इनको लगाए रखें जनाब साहब, ज़िक्र फ़िक्र में लगाए रखें, इनको सुबह की इबादत में लगाए रखें, डोंट लेट देम टू फाइंड आउट देयर मेन थिंग। So this is what you will find the way, but you got to just model it like this। और फिर जो है ना वो निकल जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। सो बहुत सारा जो इकबाल की पोइट्री है उनके इश्क की पोइट्री है, वेयर ही वुड ऑलवेज कंपेयर के इल्म, इश्क, अकल, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा इकबाल ने कंपेयर किया है, ठीक है। वो कहते हैं इल्म है कुछ और शय, ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, ठीक है। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इल्म इज़ जस्ट अ मेंटल एक्सरसाइज, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। कहता है इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, सो यू एंजॉय रीडिंग। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख, यू डोंट फाइंड आउट योर सेल्फ, यू फाइंड आउट एवरीथिंग एल्स बट योर ओन सेल्फ। सो दिस इज़ मेरे ख्याल बस 2 more minutes। अच्छा, इसमें फिर एक और उनकी नज़म है कि इश्क ने मुझसे कहा, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, ठीक है। इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन ज़न, नाउ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। वो कह रहा है दीवानापन है, इल्म कह रहा है इश्क दीवानापन है, इस पैशन, इकबाल्स पैशन इज इश्क, और वो कह रहा है ये तो प्रॉफिट लॉस देखता रहता है बस। इल्म जो है दैट टेल्स यू हियर इज प्रॉफिट हियर इज लॉस, एरर फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है।
सो एंड देन इट सेज के इल्म है इब्नुल किताब, कल्मिनेशन, इल्म है इब्नुल किताब, कि आप किताब से पढ़ते हैं इल्म, तो इश्क है उम्मुल किताब, इश्क मेक्स यू टू राइट बुक्स and ilm just you learn from the books. So hopefully if somebody is interested in doing this type of work, so I honestly believe कि ये चीज़ इस तरह से हमें नज़र आएगी अगर हम इस पे ऊपर काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर यू बीइंग हियर. जी कोई क्वेश्चन हो किसी का हमारे साथ? हेलो जी 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 sir, I was just thinking that if we make some language model n-gram based and some sort of reinforcement learning and try to go towards generative AI on Iqbal's poetry. Yes, so yes. what do you think about it? Yeah, I पिछले 25-30 साल से मैं सोचता हूँ कि वी कैन डू दिस. ओके, फाइंडिंग आउट दी ट्रांजिशंस. इकबाल की एक स्ट्रेट मशीन है ना, यहाँ से इधर आए फिर इधर आए. आई थिंक वी कैन डू समथिंग यू नो लाइक व्हाट कि इकबाल को अगर हम इस एज में प्रोग्रेस करवाएं तो वो किस तरह की वो बातें करेगा. तो आई थिंक वी कैन फिगर दैट आउट. सो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का.